صدف ایک حسین و جمیل لڑکی تھی. سیاہ زلفیں، غزالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور درمیانہ خوبصورت قد. اس کی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا. پورے شہر میں اس جیسی خوبصورت لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. کہنے والے تو صدف کے بارے میں یہاں تک بھی کہتے کہ ایسی صدف دوبارہ اس شہر میں پیدا نہ ہوئی ہے نہ کبھی پیدا ہوگی. پورے شہر میں اس کے حسن کے خوب چرچے تھے. گھر گھر اس کے حسن کا خوب توتی بولا جاتا تھا. جس گلی سے اس کا گزر ہوتا تو دیکھنے والا دیوانہ بنا رہتا. اس کی خوبصورتی اس قدر تھی کہ چند لمحوں میں لوگ اسے دل دے بیٹھتے. اس میں خوبیاں بھی اس کے حسن جیسی خوبصورت تھی. اپنے کام سے کام رکھنا، دل لگا کر پڑھنا، کسی سے فضول گفتگو نہ کرنا اور شرافت جیسی صفات اس کے چال چلن سے بھی عیاں تھی. شہر بھر کے شریر لڑکے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے اور دل ہی دل میں اسے دلہن بنانے کے خیالی پلاؤ بنائے سارا دن اس کی راہیں تکتے رہتے. گردش ایام تو انسان کو عروج و زوال کے دن دکھا کر ہی اصل جینے کا ہنر سکھاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں وہی ہوتی ہیں لیکن زندگی کے نظارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. انسان کئی ناواقف منازل طے کرتا ہوا زندگی کے سفر کے خاتمے کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. صدف کی جب میٹرک کی تعلیم مکمل ہوئی تو اسے شہر کے اعلیٰ کالج میں داخل کروا دیا گیا. یہ کالج اس کے گھر سے 8 گھنٹے کی مسافت پر واقع تھا. روزانہ رکشے والا صدف کو صبح کالج پہنچاتا اور جب چھٹی ہوتی تو وہی رکشہ اسے گھر واپس بھی پہنچا دیتا. روزانہ کالج آتے ہوئے صدف خوشبودار پرفیوم لگائے، لمبے بال، خوبصورت گلابی ہونٹ اور غزالی آنکھوں سے کئی دلوں سے گھر بناتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی. صدف کے گھر والی گلی سے آگے 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں عامر نامی لڑکے کا گھر تھا جو کہ صدف کا پڑوسی تھا. وہ صدف کا ہم عمر بھی تھا. عامر کے ایام طفلی بھی صدف اور دیگر بچوں کے ساتھ انہی گلیوں میں گزرے تھے. ایک محلے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی خوشی یا غمی کے موقع پر ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے. عامر روزانہ گلی کے کونے پر بیٹھا بڑی دل جمی سے صدف کی طرف دیکھتا رہتا. وہ اس قدر محبت میں گرفتار ہوا کہ وہ سچ مچ حالت مجنون میں ڈوبا رہتا اور روزانہ صبح سویرے صدف کا دیدار کرتے ہوئے وہ صدف سے اشاروں میں بات کرنے کی کوششیں تو بہت کرتا لیکن صدف اس کے اشاروں کو نہ سمجھ پاتی کیونکہ صدف ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. اس کا ذہن ان خیالات سے پاک تھا جو عامر کے ذہن میں چل رہے تھے. ابھی وہ باہر کے مکمل ماحول سے نہ آشنا تھی. پہلے کئی دن عامر تیسری گلی کے کونے پر بیٹھا رہا لیکن اب اس نے تیسری گلی کی بجائے دوسری گلی کے کونے پر بیٹھنا شروع کر دیا. دوسری گلی سے بھی اس کے اشاروں کا صدف پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ صدف کے عین گھر والی گلی کے کونے پر آ کر بیٹھ گیا. عامر صدف کو اپنے دل کی اصل بات بتانا چاہتا تھا مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ صدف سے بات کر سکے. بزرگ کہتے ہیں کہ سچی محبت میں رکاوٹوں کو پختہ جذبات اور احساسات ہی اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں. عامر کی شخصیت سے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے عشق بازانہ مضامین میں PhD کی ہوئی ہو. ایک رات عامر نے اپنی اس ڈائری سے ایک کاغذ نکالا جس ڈائری کے اندر اس نے صدف کی یاد میں بے شمار اشعار لکھے تھے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں. اس کی یاد آئی ہے سانسوں، ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. اب وہ سوچنے لگا لکھوں تو کیا لکھوں، کہاں سے. آخرکار اس نے خط پر چند جملے لکھ کر بند کر کے صبح سویرے گھر کے باغیچے سے ایک سرخ گلاب توڑ کر
खत के साथ मजबूती से बांध दिया और सदफ के घर वाली गली की तरफ चल पड़ा। आमिर के पहुंचने से पहले ही सदफ को लेने वाला रिक्शा वहां गली में मौजूद था। आमिर ने रिक्शे के साथ तेजी से गुजरते हुए खत फेंक कर घर की तरफ चला आया। सदफ दरवाजे से निकली और जब वो रिक्शे पर बैठने लगी तो अचानक उसके दाएं हाथ से पर्स गिर गया। पर्स उठाकर साफ करते हुए सदफ की नजर उस खत पर पड़ी जिसके साथ आमिर ने फूल बांधकर फेंका था। सदफ ने खत को उठाकर पर्स में डाल दिया। कॉलेज आते हुए उसके जहन में कई ख्याल जन्म ले रहे थे। वो दिल ही दिल में अपने आप से कह रही थी, किसी की मोहब्बत का यह हसीन तोहफा मेरी किस्मत में कैसे आ गया। वो बार बार खत को खोलना चाह रही थी, मगर वो ये भी सोच रही थी कि रिक्शे वाले अंकल ने देख लिया तो क्या होगा। कॉलेज पहुंचकर सदफ लॉन में बैठकर खत खोलने लगी। सदफ ने लरसते हुए हाथों से फूल को खत से जुदा करके देखा तो उसके जिस्म पर सख्ता तारी हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। थोड़ी देर बाद सदफ की सहेली मरियम भी लॉन में पहुंच गई। क्या हो रहा जी, आज अकेले अकेले लॉन में बैठना है? अरे सदफ, तुम्हारा तो चेहरा भी आज उतरा उतरा सा लग रहा है, खैरियत तो है ना? मरियम ने सदफ से गले मिलते हुए कहा। हाँ भाई, सब ठीक है, भला आज तुम क्यों कूदे जा रही हो? सदफ ने कहा। मरियम ने दोबारा सदफ को मुखातिब करते हुए कहा, दाल में जरूर कुछ काला है, बताओ ना। क्या बताऊं? तुमको बताया तो तुम्हें तो मजाक उड़ाने का बहाना मिल जाएगा। अच्छा वादा करो, तुम मजाक नहीं उड़ाओगी। अच्छा मैं बताती हूँ, सदफ ने पर्स से खत निकालते हुए कहा। मरियम कहने लगी, अरे पगली, पहले कभी मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है? ऐसी कौन सी बात है कि आज हलफ बर्दारियां हो रही हैं? सदफ ने खत निकालकर मरियम को दिखाते हुए सारी दास्तान सुना दी। मरियम के पांव से भी जमीन निकल गई। उसने हैरानी से तंजिया अंदाज में कहा, अच्छा अब तुम्हें भी किसी शहजादे ने आखिर पसंद कर ही लिया। यकीनन आपका कोई पड़ोसी होगा। सदफ तो आमिर को अच्छी तरह जानती थी और वाकई आमिर उसका पड़ोसी था। सारा दिन वो दौराने क्लासेस भी यही सोचती रही। कॉलेज से घर आते हुए भी वो इन ख्यालात से ना निकल पाई। सदफ जैसे ही गली में उतरी तो उसे आमिर गली में घूमता दिखाई दिया तो उसका शक यकीन में बदल गया। आमिर की तरफ गुस्से से देखकर सदफ घर चली गई। आमिर समझ गया कि मेरे दिल का पैगाम सदफ तक पहुंच गया। वो पागलों की तरह रक्स करने लगा। उसकी खुशी की इंतहा न रही। कुछ अरसे के बाद यूं हुआ कि जब सदफ की कॉलेज की तालीम मुकम्मल हुई तो उसके मामू इस्लामाबाद से सदफ का रिश्ता मांगने उनके घर आए। सदफ के वालिदैन ने उन्हें हाँ कर दी। सदफ का रिश्ता उसके मामू के बेटे नवीद से तय हो गया। नवीद अच्छा खासा पढ़ा लिखा और गवर्नमेंट मुलाजिम था। सदफ खानदान के बुजुर्गों मामू और मुमानी के दरमियान खूबसूरत सुर्ख फराक पहने, हाथों पर मेहंदी लगाए, होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक सजाए, खामोश दुल्हन बनी बैठी थी। उसके दिल में आमिर के अल्फाज घर कर चुके थे। वो पूरी तरह मोहब्बत की लपेट में आ चुकी थी। आमिर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। रिश्ता तय करने के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। फर्नीचर, ज्वेलरी और शादी की तैयारियां करते करते बिलाखिर सदफ की रुखसती का दिन भी आ गया। आमिर को जब अचानक से इन तमाम बातों का इल्म हुआ तो उसको बहुत दुख हुआ। उसके लिए ये बिल्कुल किसी नागहानी मौत का आलम था। इस खबर के मिलते ही आमिर गुस्से से पागल हो गया था। आमिर ने अपनी कजिन के हाथों सदफ को अपना मोबाइल नंबर भिजवा दिया। आमिर ने सदफ को हर हाल में हासिल करने का दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया था। सदफ की रुखसती के दिन आमिर आंसू बहाते हुए घर के चौबारे की आधी खिड़की खोले सदफ की रुखसती का सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। आज जैसे उसके अरमानों का जनाजा निकल रहा हो।
اس کی जिंदगी की ख्वाहिशों को उसकी आंखों के सामने कत्ल किया जा रहा था। आंसू बहाते बहाते उसने सदफ को अपनी आंखों के सामने रुखसत किया। सदफ की रुखसती के एक हफ्ते बाद सुबह सवेरे आमिर उसी खिड़की में नजरें जमाए खड़ा, ख्यालों में सदफ की यादों में मसरूफ था कि उसके नीले रंग के कोट की फ्रंट जेब में से मोबाइल पर मैसेज की आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आमिर, मुझे तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा उसी दिन हो गया था जिस दिन आपका खत मुझे मिला था, मगर मैं वालिदैन के हाथों मजबूर थी। मुझे माफ कर दें। आप हमेशा मेरे दिल में आबाद रहेंगे। दुआओं में याद रखना। फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। आमिर ने बड़े गौर से मैसेज पढ़ा। सदफ का मैसेज देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसे इस कदर खुशी हुई जैसे सदफ उसकी जिंदगी में दोबारा लौट आई हो। इस तरह शादी के बाद सदफ का आमिर के साथ राब्ता शुरू हो गया। अल्लाह पाक ने सदफ को साहिब औलाद किया और उसे 2 जुड़वा बेटी और बेटे से नवाजा। सदफ ने बेटी का नाम नगमाना और उसके शौहर नवीद ने बेटे का नाम कामरान रखा। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। सदफ अब 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। बजाय घर संभालने के सदफ के सर पर इश्क का भूत अभी तक सवार था। नवीद जब सुबह सवेरे दफ्तर चला जाता तो सदफ रोजाना आमिर से घंटों गप्पे हाँकने में गुजार देती। यहां तक कि राब्ते में एक दिन सदफ ने आमिर के हाथों शौहर को कत्ल करके शादी करने का फैसला कर लिया। क्योंकि आमिर नौ उम्र लड़का था, उसने सोचे समझे बगैर ये फैसला मंजूर कर लिया और सदफ के साथ नवीद के कत्ल की तरह तरह की तदबीरें करने लगा। एक दिन जब सदफ का शौहर घर से ऑफिस के लिए निकला तो सदफ ने आमिर को कॉल करते हुए कहा, हेलो, हाँ आमिर, आज मैं नवीद से झगड़ा करके मैके चली जाऊंगी। फिर आपने अपना वादा वफा करना है। आमिर भी खुश हो गया था। उसे ये समझ ना आई कि वो जिस काम के लिए कदम उठा रहा है वो उसकी सारी जिंदगी को चंद लम्हों में तबाह करके रख देगा। वो ये भी सोचने से कासिर था कि इश्क की असीरी उसे सलाखों की असीर बना देगी। सदफ का शौहर जैसे ही ऑफिस से घर वापस आया तो सदफ ने पहले तो नवीद के सलाम का जवाब तक ना दिया और फिर मूड खराब करके बैठ गई। सदफ, आज खैरियत तो है? क्या घर में किसी ने कुछ ऐसा वैसा कहा है? बताओ तो सही। नवीद ने लैपटॉप मेज पर रखते हुए कहा। सारा दिन दफ्तर के अलावा भला तुम्हें किसी की परवाह है? सदफ ने गरजते हुए कहा। बातों बातों में झगड़ा शुरू हो गया। नवीद ने बहुत समझाने की कोशिश की मगर सदफ ख्वामख्वाह बिगड़ती चली गई। उसके अंदर का शैतान उरूज पर पहुंच चुका था। हत्ता कि सदफ झगड़ा करके मैके चली गई। चंद दिन के बाद जब मामला ठंडा हो गया और सदफ के रूठ जाने की वजह से शक दूर हो गया तो सदफ ने आमिर को कॉल करते हुए कहा, हेलो, हाँ आमिर, कैसे हो? मैं अम्मी के घर पहुंच गई हूं। अब आप अपना काम शुरू करें। सदफ ने आमिर को घर की सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। रात के 12 बज चुके थे। हर तरफ खामोशी का आलम था। तेज बारिश हो रही थी। आमिर ने दोस्त सुल्तान के घर से पिस्तौल उठाया और नवीद के घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से नवीद ने आवाज देते हुए कहा, अरे 1 मिनट सब्र तो करो यार, आ रहा हूं। बाहर बारिश हो रही है, मुझे छतरी तो ढूंढने दो। नवीद को ये इल्म तो नहीं था कि बाहर फरिश्ता अजल उसके इंतजार में है। नवीद जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आया, आमिर ने उसके सर पर गोली मारी, जिसके बाद आमिर रफू चक्कर हो गया। नवीद मौके पर ही दम तोड़ गया। फायरिंग की आवाज से मोहल्ले में हर तरफ कोहराम मच गया। एक राहगीर ने आमिर को नवीद के घर से निकलता हुआ देख लिया। उसने पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने आमिर को रास्ते में ही पकड़ लिया, हवालात में बंद कर दिया। तफ्तीश शुरू हो गई। पहले तो आमिर ने जबान नहीं खोली, मगर जब हवालात में मार पड़ी तो आमिर ने पुलिस को सारी कहानी से आगाह कर दिया। ससुराल वालों की तरफ से भी सदफ को अपने शौहर के कत्ल का मुजरिम करार दे दिया गया कि नवीद के कत्ल में
सदफ का हाथ है। आमिर को सजाए मौत हो गई। सदफ का शौहर के कत्ल के बाद आमिर से शादी का ख्वाब ही रह गया। दोनों खानदान तबाह हो गए। सदफ हर किसी को गले लगाकर खूब रोती और अपने फैसले पर दिन रात पछताती रहती। नवीद के कत्ल के बाद सदफ का दिल हर वक्त बेचैन रहता। दिन ब दिन वो शौहर के गम और कत्ल जैसे गुनाह से खत्म हो रही थी। एक रात सदफ ख्वाब में उसके शौहर की मोहब्बत मुखातिब करके कहने लगी, अब तुझे सारी जिंदगी रुस्वा ही रहना है। मोहब्बत के कातलों की यही सजा होती है। सदफ नींद से चीखती हुई उठी और रो रो कर कहने लगी, मैंने जुल्म किया, मैं मुजरिम हूं, मैं कातिल हूं। नवीद, मोहब्बत